محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس نے اس مال میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا، اور دوسرے آدمی کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے اس 2 درہم میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! یعنی اے مسلمانوں، صدقہ کرو، چاہے ایک کم سے کم ترین چیز کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم کے صدقے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا قرار پایا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ 13 اپریل کو شہر نظام آباد میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آمد۔ مسجد کچیان میں بعد نماز ظہر جلسہ یوم القرآن سے کریں گے خطاب۔ وہ قلعہ روڈ پر منعقدہ دعوت افطار میں شرکت کرتے ہوئے نظام آباد کے عوام کے ساتھ کریں گے افطار و دعا۔ رمضان مبارک کے موقع پر رینجل منڈل کے رائتو ویدیکا بھون میں غریب مسلم افراد خاندان میں غذائی اشیاء کی بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر کے شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے کی فراہمی۔ تمام طبقات کے لیے فلاحی اسکیمات تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست۔ شہر نظام آباد کے کوٹا گلی میں منعقدہ خصوصی ملاقات پروگرام سے اربن ایم ایل اے بیگاڑا گنیش گپتا کا خطاب۔ متحدہ اضلاع میں مہاتما جیوتی راؤ باپولے کی جینتی تقریب کا شاندار روحانی پر انعقاد۔ اربن ایم ایل اے بیگاڑا گنیش گپتا، زڈ پی چیئرمین ڈی وی راؤ، کلکٹر کے علاوہ میئر نیتو کرن نے پیش کی خراج عقیدت۔ سی ایم کے سی آر کے دور افتتاح میں جاری ترقیاتی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر مودی راج برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے اراکین ضلع اتحاد صدر اربن ایم ایل اے جیون ریڈی کے ہاتھوں بیالس پارٹی میں کی شاملیت تھا۔ کانگریس قائد کو سابقہ میئر دھرما پوری سنجے کے گھر پر حملہ۔ رکن کونسل کویتا کے پیر میں فریکچر، 3 ہفتے تک آرام کرنے کا ڈاکٹرز نے دیا مشورہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 13 اپریل کو شہر نظام آباد میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آمد۔ مسجد کچیان میں بعد نماز ظہر جلسہ یوم القرآن سے کریں گے خطاب۔ قلعہ روڈ پر منعقدہ دعوت افطار میں شرکت کرتے ہوئے نظام آباد کے عوام کے ساتھ کریں گے افطار و دعا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام مسجد کچیان نظام آباد پر اس ماہ کی 13 تاریخ 21 رمضان مبارک بروز جمعرات بعد نماز ظہر جلسہ یوم القرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب و مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی خادم حیدرآباد کا خطاب عام ہوگا۔ بعد مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کی جانب سے قلعہ روڈ نزد مسجد ہاشمی نظام آباد پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد ضلع صدر شیخ الفاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان، مجلسی کارپوریٹرز، کوآپریشن ممبران و قائدین نے عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ رمضان مبارک کے موقع پر رینجل کے قریب مسلم افراد خاندان میں غذائی اشیاء کی بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر کی شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے کی فراہمی۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر کے شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے رمضان مبارک کے موقع پر رینجل منڈل کے رائتو ویدیکا بھون میں غریب مسلم افراد خاندان کو چاول، شکر وہ عید کے لیے درکار ضروری اشیاء کے ساتھ ساڑیوں کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 25 سال سے فلاحی خدمات انجام دے رہے اور آگے بھی ہمارے
बच्चे फलाही खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर बीआरएस कायद रफीक, सरपंच रमेश, रेंजर पीएसीएस चेयरमैन मोइनुद्दीन, बीआरएस कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। मंडल में आज रमज़ान का गिफ्ट दिया गया है, तकरीबन 200 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। इस गिफ्ट में रमज़ान के दिन, ईद के दिन यानी कि अच्छी तरह से उनकी ईद गुजरे उस तरह से सामान दिया गया है। शिरकुमे का सामान रहने दीजिए या घर का दाल चावल पकाने के लिए रहने दीजिए, और उनको पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए हैं इसमें। तो ये तकरीबन 25 साल से चलता हुआ आ रहा है सिलसिला, और इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहेगा, जब तक हमारी हयात है चलता रहेगा। 13 अप्रैल को मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से दावत इफ्तार। मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात 21वें रोज़े के मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम दफ्तर मजलिस बचाओ तहरीक बरकतपुरा निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद होगा। इस तक़रीब में रियासती सदर मजलिस बचाओ तहरीक जनाब मजिदुल्लाह खान साहब, जनाब मुस्तफ़ी महमूद साहब, जनाब अमजदुल्लाह खान साहब, पार्टी तर्जुमान जनाब अलहाज सैयद सलीम साहब, सिकंदरुल्लाह खान, अफ़ानुल्लाह खान शिरकत कर रहे हैं। इस दावत इफ्तार में शिरकत करने की सदर ज़िले मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद ने अवाम उन्नास से ख्वाहिश की। निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के घर पर हमला। आज सुबह शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निज़ामाबाद डी संजय के घर पर हमला करने और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए डी संजय के घर की गेट को तोड़ने की कोशिश करने वाले संदीप नामी शख्स को फोर्ट टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक आज तकरीबन सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के मकान पर एक शख्स अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए आया और वहां मौजूद घर के निगरान कार नौजवान से नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बहस व तकरार करने लगा और अचानक अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से डी संजय के ख़यामगाह के गेट को तोड़ने के लिए गाड़ी से मुसलसल टक्कर मारते हुए गेट को शदीद नुकसान पहुंचाया। वहां मौजूद नौजवान की बार बार मदाखलत के बावजूद वो इस पर भी हमला करने की कोशिश की। इस नौजवान की अपनी हरकतों से बाज न आने पर वहां मौजूद नौजवान ने डायल 100 पर एक नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से डी संजय के घर हमला करने की शिकायत दर्ज कराई। फोर्ट टाउन पुलिस फौरी हरकत में आते हुए डी संजय के ख़यामगाह पहुंचकर संदीप नामी इस हमलेवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हमलावर नौजवान का नाम संदीप बताया गया। मुतालिका पुलिस इस हमले की वजूहात का हर दावी से तहकीकात का आगाज कर रही है। సారింటి దగ్గర హంగామా చేస్తూ కూర్చున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత నేను వాళ్ళు ఎందుకోసం వచ్చారు ఏం సంగతి అని వాళ్ళని అడిగే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళ ఐడెంటిటీని రివీల్ చేయలేదు. వాళ్ళు రూడ్గా బిహేవియర్ చేసుకుంటే నీకెందుకు, నువ్వు ఎవడివి, నీకేం సంబంధం అన్నట్టు. నేను ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిని, అది నా బాధ్యత, నేను చూసుకోవాల్సింది అని అంటే వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడినతో గొడవ దిగిర్రు. వాళ్ళు తెచ్చిన వెహికల్ తోటి గేట్ని గుద్దిర్రు. सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल के वेलमल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मोदीराज बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान ने ज़िले टीआरएस सदर आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज नंदीपेट मंडल के वेलमल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मोदीराज बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले चिलुका भूमेश, सादुला भूमेश, पी गंगाधर, एस नरेंद्र, वेमुला सुरेश, मुराला गंगाधर, सादुला सुबाना, गजम बालाकिशन, मुम्माई प्रवीण, कल्याण, श्रीपुरम, गंगाना ज़िले टीआरएस सदर आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़दा एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती फलाही स्कीमात को रियासत में मुक़िम अवाम महसूस कर रही है, क्योंकि बीआरएस हुकूमत की जानिब से कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जैसे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में बीआरएस की पॉलिसियाँ मज़ाहिब की बुनियाद पर नहीं बनाई गई है, बल्कि तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की पर गामज़न होने का इजहार किया। और इसके अलावा रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के एक के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन को पाबंदी के साथ रकमी इमदाद जारी की जा रही है। इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक
स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक लड़की को 1,116 रुपए देने का फैसला करने के बायस आज कई मुस्तहिक लड़कियों के अफराद खानदान इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करें। MLA जीवन रेड्डी ने बताया कि पहले इस स्कीम के तहत 51,000 रुपए दिए जाते थे, इसके बाद 75,000 रुपए दिए जाने लगे, लेकिन ये रकम भी नाकाफी महसूस की जाने लगी। तब रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के रकम में इजाफा करते हुए आज हर एक मुस्तहिक लड़की की शादी के मौके पर 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलती। इन्होंने मज़ीद कहा कि KCR में तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, चूँकि KCR जो खुद एक किसान खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ है। यही वजह है कि किसानों की माली मदद के लिए रायत बंधु स्कीम मुतारफ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नजीर नहीं मिलती। रायत बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। सियासत हुकूमत के अमली इक़दाम के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबे बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफी मांग है। दूसरी तरफ KCR ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रायतु बीमा का भी आगाज किया है। रायतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़्फ़ी किसान के विरसा को 5 लाख रुपए माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। KCR की फलाही स्कीमात के हर कोई मुतरादिफ है। इन्होंने मज़ीद बताया कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर-ए-आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अख़लातों की तरक्की और फलाही व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम करते हुए अख़लातों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए भी ठोस इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क के वाहिद वज़ीर-ए-आला है जिन्होंने मुसलमानों में तालीमी सुधार लाने के लिए अख़लाती अक़ामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस को क़ायम किया, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। PG व पेशा वाराना कोर्सेज के लिए फीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में हुसूल रकम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात से मुतारफ़ करवाया गया। KCR एक सेकुलर जहन के मालिक है जिन्होंने गरीब अख़लातों के लिए और रियासती अवाम की बहबूदी की खातिर बेशुमार स्कीमात को मुतारफ़ करवाने का इजहार किया। मोरदार मंडल के धर्मोरा देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। मोरताल मंडल के धर्मोरा देहात में कंटी वेलगू कैंप का इफ्तिताम अमल में लाने का मौजे के सरपंच मंडल राजेश्वर ने इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बसारत की खराबी को दूर करने के मकसद के तहत शुरू किया गया आंखों की रोशनी प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अजीम प्रोग्राम है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से शुरू किया गया एक इंतहाई सोचा समझा प्रोग्राम है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने 2018 में आंखों की रोशनी के लिए एक पहल की थी ताकि आंखों के इस मसले को खत्म किया जाए जो मौजूदा समाज में एक समाजी आर्जा बन चुका है। बताया गया है कि पहले मरहले के तहत रियासत भर में 50 लाख अवाम के आंखों के मुआयने करवाए गए। इनमें से 4/4 आंखों के अमराज में मुब्तला पाए गए और 50 लाख लोगों को चश्मे फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए कंटी वेलगू कैंप से मुकामी अवाम रुजू होकर आंखों का टेस्ट करवाने की सूरत में ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मा और अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा मुकामी अवाम आंखों की रोशनी प्रोग्राम के मराकज़ में आते वक्त अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ रखते हुए हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर-ए-आला KCR और रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC लावण्या सुधाकर, तिब्बी अहदेदार नसीमा, सेक्रेटरी श्रीनिवास, नायब सरपंच जनार्दन, कारोबार सैयना, मजलिस बल्दी मेम्बरान व तिब्बी अमले ने शिरकत की। ఈరోజు కంటి వెలుగు అంటే ఉచిత ఎక్కువ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ దవాఖానలకు పోయి లక్షలు ఖర్చులు పెట్టి చేపించుకుంటుండ్రే మా మంత్రి వాళ్ళు చేసి విలేజ్గా కంటి వెలుగు ఉండాలని ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ మంచిగా ఉంటేనే మేము మంచిగా ఉంటామని చెప్పినారు, ఆదేశాలు ఇచ్చినారు। ఆదేశాల ప్రకారంగా ఇవాళ నుంచి వచ్చే ఇప్పుడు ఈ నెల 24 దాకా बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में जीवती राव बापुले की 197 जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना BC वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर व बानी एम नरेंद्र गौड के अहकामात के मुताबिक तेलंगाना BC वेलफेयर एसोसिएशन मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद सदर अब्बा गोनी अशोक गौड के ज़ेर निगरानी में जीवती राव बापुले की 196वीं जयंती बालकुंडा हल्के के सानगर देहात में शानदार पैमाने पर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले समाजी फलसफी कारकुन और समाजी कारकुन ज्योतिराव बापुले 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में पैदा हुए। इन्होंने पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में शोर बेदार किया जो कि जागीरदाराना सरमायादारों की फलाही करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह से इन्होंने ख़वातीन के
खुसूसी स्कूल खैम के और बचपन की शादियों का खात्मा करते हुए बेवाओं की दोबारा शादी करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन मुत्तहिदा निजामाबाद जिले सदर अशोक गौड, तेलंगाना बीसी वेलफेयर संगम जिले निजामाबाद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ए श्रीधर बुद्धिगा ने शिरकत की। शहर के सुभाष नगर में महात्मा ज्योतिराव बाफुले की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के सुभाष नगर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के पेश नज़र तेलंगाना गिरिजन तहफ़्फ़ुज़ समिति की ज़ेर निगरानी में ज्योतिबा फुले मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर तेलंगाना गिरिजन तहफ़्फ़ुज़ समिति रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट एम रामू ने खिताब करते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में रियासती जनरल सेक्रेटरी ए रामचंद्र, जिले सदर जी साइलू, जिले के कायद मंदर राजू ने शिरकत की। జయంతి రోజు మన బడుగు వర్గాల యొక్క ఆశా జ్యోతి భారత్ ఈరోజు పులే గారి జ్యోతిరావు పులే గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు బడుగు వర్గాల शहर के भीमार्मी जिले दफ्तर पर महात्मा ज्योतिराव बाफुले की जयंती तकरीब मुनक़िद की गई। शहर के बाईपास रोड पर वाक़ई भीमार्मी जिले दफ्तर में भीमार्मी जिले कमेटी के ज़ेर निगरानी में महात्मा ज्योतिराव बाफुले की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले सदर संजीव सासन ने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। रुकन कौंसिल कविता के पैर में फ्रैक्चर, 3 हफ्ते तक आराम करने का डॉक्टर्स ने दिया मशवरा। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल कविता के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए कविता ने कहा कि डॉक्टर्स ने इनको 3 हफ्ते तक आराम करने का मशवरा दिया है। इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की मालूमात या मदद के लिए इनका दफ्तर दस्तयाब होने का इजहार किया। महात्मा ज्योतिराव बाफुले की अज़ाइम के मुताबिक रियासत में केसीआर हुकूमत पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। आज महात्मा ज्योतिराव बाफुले की 197 जयंती के पेश नज़र विज़रा के सरकारी रिहाइशगाह में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शानदार पैमाने पर खराज क़दर पेश किया और इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहियात तक याद रखने का। इन्होंने कहा कि ज्योति बाफुले की जानिब से फराहम करदा तहरीक की वजह केसीआर गवर्नमेंट पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम दे रही है और हुकूमत की जानिब से रुबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से आज तेलंगाना के दलित गिरिजन पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ वालों के अलावा खवातीन समाजी व माशी, सियासी, सकाफती व तालीमी तौर पर बेहतरीन नताइज हासिल करने का इजहार किया। तमाम तबक़ात के लिए फलाह स्कीमात तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त। शहर के गोटा गली में मुनक़िदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के ज़ेर निगरानी में डिवीज़न नंबर 7, 25, 26, 48, 49 से मुताल्लिक़ बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान के साथ शहर के कोटा गली मार्केंद्रया मंदिर के पास शानदार पैमाने पर मुनक़िदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में तकरीबन 4000 कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने भी शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के द्वारा इक़्तिदार में CM केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना सतह पर कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाह स्कीमात की मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती और इसी तरह से 60 साल में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के द्वारा इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने का सहरा CM केसीआर के सजाने का इजहार के। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिवीज़न नंबर 7 इंचार्ज के संतोष जी लिंगम, अनिल राव कृष्णा, डिवीज़न नंबर 25 कॉर्पोरेटर एस धर्मपुरी, कॉर्पोरेशन मेंबर वो दीगर ने शिरकत की। गुलाबी सैन्యం ఎట్లుంటది, మా గులాబీ దండ ఎట్లుంటది, ఒక్క సీటి కొడితే ఇయాల 24 గంటల్లో ఇంత మంది ఇక్కడికి వచ్చారు. మరి నిజంగా మీ అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. ఎప్పుడు మీరు నా ఎంట ఉండాలని, ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా, ఎప్పుడు కరోనా లాంటి విపత్తులు రావద్దని చెప్పేసి నేను మొక్కుకుంటున్నా. కరోనా లాంటి విపత్తులు మళ్ళీ రావద్దు, ఎలాంటి విపత్తులు కూడా రావద్దు. అయితే ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా నేను మీకు తోబుట్టుగా, ఒక సోదరుడిగా నేను ఉంటా. మరి ప్రభుత్వం అందరినీ గౌరవంగా చూస్తుంది కాబట్టి, కేసీఆర్ గారు గౌరవంగా చూస్తారు కాబట్టి, 50 సంవత్సరాల్లో జరగనటువంటి అభివృద్ధిని చేసి చూపించినా కాబట్టి మరోసారి అవకాశం ఇవ్వాలని మా చెల్లెలు నీతూ కిరణ్ గారు చెప్పారు। कंटी वेलगू कैंप से हर एक को इस्तिफादा हासिल करने की मुकामी सरपंच कलीम बेग ने की ख्वाहिश। रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में दूसरे मरहले के तहत क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच कलीम बेग ने
शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अमल में आए। इस मौके पर सरपंच कलीम बेग मुत्तिबी अमले ने कहा कि हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम 18 यौम तक जारी रहेगा, लिहाजा मुकामी अवाम इस आई कैंप से रुझू होकर अपने आंखों का टेस्ट करवाने वाले ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मे और अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। గ్రామంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రారంభించబడింది। ఈ కార్యక్రమము వచ్చే 18 రోజులు కొనసాగుతుంది। कंटी वेलगू कैंप का अवामी नुमाइंदों ने शमा रोशन करते हुए किया इफ्तिताह। रेंजल मंडल की ताड़बिलोली ग्राम पंचायत में दूसरे मरहले के तहत क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का एमपीपी के साथ मुकामी सरपंच वेलमा सुनीता नरसैया ने शमा रोशन करते हुए कंटी वेलगू कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर देहात में मुक़ीम अवाम ने आई कैंप से रुजू होकर आंखों का टेस्ट करवाने के बाद ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मे और अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई और ये कैंप 11 यौम तक जारी रहेगा, लिहाजा मुकामी अवाम को इससे इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। మరి వైద్య సిబ్బంది మరి మా గ్రామ పెద్ద మనుషులు పంచాయతీ పాలకవర్గం మరియు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు మరి గౌరవ శాసనసభ్యుల గారికి మరియు గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఏదైతే ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ని మరి తాడిమిల్లి గ్రామంలో 3500 జనాభాలో 2,850 మంది 18 సంవత్సరాల పైబడి వారు ఉన్నారు కాబట్టి వారందరికీ వైద్య పరీక్షలు చేసి మరి వారి లోపాలను గుర్తించి వారికి ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటిది డాక్టర్ గారులచే పరిష్కరించబడుతుంది। इस माह की 10 तारीख को हनुमाकुंडा में मुनाकिद होने वाले रियासती सतह एथलेटिक्स मुकाबला जात के लिए जिले से 12 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाने का एथलेटिक्स संगम जिले सदर रत्नाकर ने किया इजहार। शहर के नागाराम स्टेडियम में इस माह की 11 तारीख को एथलेटिक्स के इंतखाब का इनेकाद अमल में लाने का जिले संगम सदर व जनरल सेक्रेटरी रत्नाकर राजा गौड़ ने इजहार किया और अंदरून 20 साल लड़के व लड़कियां इसके लिए अहल होंगे। इसी तरह से यहां से मुंतखबा होने वाले इस माह की 15-16 तारीख को हनुमाकुंडा में मुनाकिद होने वाले रियासती सतह के मुकाबला जात में हिस्सा लेने का इजहार किया। मज़ीद मालूमात के लिए 9989040776 पर रब्त पैदा करें। 12 మంది మెరిట్ అథ్లీట్స్ని పంపడం జరుగుతుంది। వారి కొరకు రేపు అనగా బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం ఈ 3 రోజులు కూడా సుద్దపల్లిలో మా జనరల్ సెక్రటరీ రాజాగౌడ్ గారి అకాడమీలో వీళ్ళకి స్పెషల్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ संगमों के भवन की तामीर से मुताल्लिक़ा राजी पर रखा संग बुनियाद। वेलपुर मंडल के अंकसपुर देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक एमपीपी बीमा जमुना टीआरएस कायदीन ने गंगापुत्र संगम, रजगा संगम, वडेरा संगम भवन की तामीर से मुताल्लिक़ा राजी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब गंगापुत्रा तबके के संगम के लिए 5 लाख, रजगा तबके के लिए 5 लाख, वडेरा तबके के संगम के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी हवाले करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। 13 अप्रैल को शहर निज़ामाबाद में कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आमद। मस्जिद कच्चियान में बाद नमाज ज़ोहर जलसा यौमुल कुरान से करेंगे खिताब। वकीला रोड पर मुनाक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए निज़ामाबाद के अवाम के साथ करेंगे इफ्तार खुतबा। रमजान मुबारक के मौके पर रेंजल मंडल के रायतु वेदिका भवन में गरीब मुस्लिम अफराद खानदान में गज़ाई अशिया की बोधन तस्वरी शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने की फ्राहमी। तमाम तबकात के लिए फलाई स्कीमात तेलंगाना मुल्क भर में सारे फैले। शहर निज़ामाबाद के कोटा गली में मुनाक़िदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। मुत्तहदा अज़ला में महात्मा ज्योतिराव बाफुले की जयंती तकरीब का शानदार ज़माने बल्कि खास अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, ज़डपी चेयरमैन डीवी राव, कलेक्टर के अलावा मेयर नीतू किरण ने पेश की खराज अक़ीदत। सीएम
KCR के दौरे इफ्तिताह में जारी तरक्याती फलाइट की मांग से मुतासर होकर मोदीराज बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले अराकीन ज़िला सदर आलम मिले जीवन रेड्डी के हाथों पीआरएस पार्टी में की शामिलियत था। कांग्रेस खातून साबिका मेयर धर्मपुरी संजय के घर पर हमला। रुकन कौंसिल कविता के पैर में फ्रैक्चर, 3 हफ्ते तक आराम करने का डॉक्टर ने दिया मशवरा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।